Now today let's start with chapter number 16, Government of India. We have state government, central government. So government क्या है? All of your needs, some basic things like drinking water, electricity, road, transport, schools, college and hospital, they all are called civic amenities or public utility services. And who gives this? Our government. And a government has many forms: dictatorship, monarchy and democracy. Let's talk about government of India now. So our country got independence from British rule. कब मिला था? 15 अगस्त 1947. और इस डे को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एज अ इंडिपेंडेंस डे. So every independent country has its own constitution, and a constitution, it is a legal document which has set of rules and regulation. The government runs according to these rules and regulation, and the Constitution of India was adopted. कब adopt हुआ था? 26 January 1950, and it is known as Republic Day, and we celebrate it every year. Or Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constitutional Assembly, and the Constitution of India says that India is a sovereign, secular, socialist, democratic, and republic. Sovereign means free to run country in any way, right? Secular means all the religions, they are equally respected. And if we talk about socialist, that it means that all of us will be treated as equal. And democratic, it means the government is elected by the people of the country. Republic, that country is run by the people, not by king. Then we have municipal communities. वो क्या होती है? आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं या सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट? उन्हें क्या कहता है? लोकल बॉडीज. नाउ सिटीज, टाउन और जितने भी आपके ट्रेडिशनल एरियाज होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया, each with its own responsibility and structure and governance. So we can say that the Municipal Corporation and Kolkata Bombay Municipal Corporation in 1726, जो अर्ली पार्ट है आपके 19th सेंचुरी के, यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो प्रेसिडेंट है आपके म्यूनिसिपैलिटीज के, उनको हम इलेक्ट करते थे बाय द लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन. यहाँ पे आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है. दे ऑल्सो हैव टू पे road tax, property tax and toll tax. Now what happened in 1992, Act made it mandatory for the Central Finance Commission to take care of the state municipality. It also provided fund for them whenever they required. However, unlike the rural governing bodies, the urban Indian की जो municipalities होती थी, what they did, they federated a systematic network. And the municipality of India was headed by municipal commissioners, जिसका tenure है वो fixed है, and all the powers and responsibilities जो हैं वो आपकी municipal corporation की, वो they are provided by the statute of state. जो functions हैं वो क्या है? 2 parts में discretionary है और कुछ obligatory. आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. Like we have housing facilities for low income group, construction and maintenance. ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस है, लाइब्रेरी, रेस्ट हाउस, पब्लिक पार्क्स, लेपर होम्स, रेस्क्यू, प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्ट लेक, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, सिक्योरिंग और रिमूवल ऑफ बिल्डिंग प्लेसेस दैट आर प्रोन टू डेंजर, राइट? ऑब्लिगेटरी क्या है आपके? मतलब बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल या सप्लाई ऑफ होलसम वाटर, ये ऑब्लिगेटरी है. नाउ व्हाट आर पंचायत्स? ये कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं इन द विलेज. पंचायत्स इन एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, even election procedures. ठीक है, under Article 40, if we talk about Article 40 Constitutions of India, the government of the country has set up a panchayat in the village, और इनको हम local self government कहते हैं, right? We have ग्राम पंचायत, पंचायत समिति and जिला परिषद. So the basic unit of panchayat of India is known as ग्राम पंचायत. The village council is elected by the popular voting system, और जो member हैं वो elect करे जाते हैं by the council chairs. Right, then we have पंचायत समिति जो आपकी ब्लॉक काउंसिल होती है. द टॉप लेवल ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द एंटायर पंचायती राज सिस्टम, दैट इज जिला परिषद. फंड्स ऑफ द पंचायत, दे आर गैदर्ड फ्रॉम 3 मेन सोर्सेज. स्टेट गवर्नमेंट फंड्स देती है पंचायत को, जब उनको स्टेट फाइनेंस कमीशन से क्या मिल जाती है? रिकमेंडेशन मिल जाती है. देन कुछ स्कीम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है. देयर आर मेनी लोकल बॉडीज एंड फंड्स फॉर द पंचायत. वी हैव सेंट्रल फाइनेंस कमीशन. नाउ मेन फंक्शन क्या है? ये एक तो क्लीनिनेस को देखता है, विलेज में क्लीनिनेस को देखता है. दूसरा
कि ये स्कूल्स में जो भी चिल्ड्रंस हैं, एडल्ट्स हैं, वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करता है विलेज फेयर, ओपन करता है PHCs दैट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और ये रिपेयर करता है विलेज रोड्स एंड हैंडपम्प्स। देन वी हैव प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे हमारी पेज का प्रीफेस होता है वैसे हमारा प्रीएम्बल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। वी द पीपल ऑफ इंडिया वी रिजॉल्व टू solemnly constitute India into sovereign, secular, योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजन। ठीक है। जस्टिस आपके 3 तरीके के हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। देन वी हैव फ्रेटर्निटी, dignity of individual and unity and integrity. Then we have fundamental rights. Basically we have 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational right, and your constitutional remedies. मतलब आप चाहे तो कोर्ट में भी जा सकते हैं। नाउ वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस है, ये हमारी ड्यूटी है टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल इंस्टीट्यूशन। जैसे आपका नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया। टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स जो आपके नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम को इंस्पायर करते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। हार्मनी, ब्रदरहुड मेंटेन करना है, आपका जो रिच हेरिटेज कल्चर है उसको प्रिजर्व करना है, इम्प्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। देन वी हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल? ये कुछ गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेलफेयर में हेल्प करती है, लाइक प्रोवाइड प्रॉपर लिविंग कंडीशन, प्रोवाइड वर्क फॉर एवरीवन, इंश्योर दैट सम पीपल डू नॉट बिकम रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स। ठीक है, ये नहीं कि आप रिच हो रहे हो और दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल राइट। Now this was all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.